Now listen, students. I am Dr. Arvind Kumar, Faculty of Management, Government Engineering College, Jamui, Bihar. I am going to start the subject, the class of subject of cost management of engineering project. And here the topic is the value chain management accounting in the course of cost leadership. The value chain management accounting in the course of cost leadership. First of all, I want to reconcile what is meant by cost leadership. In nutshell, cost leadership means reduction of the cost, minimizations of the cost, activity-based minimizations of the cost, which leads reduction in the total cost of production, is so-called cost leadership. There are some points which should we keep in mind in the course of value chain management accounting on the front of cost leadership. The first point is a strategy support development of full-fledged activity-based costing system. What is mean by that? First, a strategy support. Development of full-fledged activities based costing system. It's mean whatever be the strategy of the management relating value chain management accounting, a full-fledged activity-based costing system should be needed. There should be a system. And whenever we talk about system had so many features. Such as coordination, cooperation, positive linkage, goal oriented motivations. These are some features of any systems.
So a system should be developed in a strategy to support full-fledged activities. Whatever be the activities, this system should cooperate the full-fledged activity. Means all the activities should be taking in the considerations and all the things should be taking in the considerations of a particular activity. That's why a corrective actions will take place there. What is the latches? What is the lacunage? In particular activities, it should be identified. And this system should be cooperative with the what is the strategy of business management regarding value chain management, accounting. Now the next point, extend activity-based costing approach beyond the boundaries of the firm. In previous class, on the front of cost differentiations, this point is also there. Extend activity-based costing approach beyond the boundaries of the firm. It means this is important both in product differentiations and cost leadership. हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस के दायरे में कोई बातों को नहीं सोचेंगे, उससे बाहर भी हम जो है बातों को सोचेंगे। कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसको आउटसोर्स कर देने में फायदा है? आउटसोर्स का मतलब है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो सीधे उस एक्टिविटीज में जो है वो शामिल नहीं होता है, उसके ह्यूमन रिसोर्स जो है उसमें शामिल नहीं होते हैं और उसके अदर रिसोर्स भी उसमें शामिल नहीं होते हैं, बल्कि जो बाहरी जो प्रोफेशनल्स कंपनियां हैं जो कि उस एक्टिविटी में माहिर हैं उनको हायर किया जाता है। क्या पैसे देने होंगे और क्या सर्विस लेनी है,
क्या क्या सर्विस की क्वालिटी होगी, वो सब तय कर करके आउटसोर्सिंग माने बाहर की जो पेशेवर कंपनियां हैं उनको हायर कर लेना, उनकी सेवा प्राप्त करना। यदि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में ऑन द फ्रंट ऑफ कॉस्ट लीडरशिप ऐसा करना जरूरी लगता हो, फायदामंद लगता हो। Now the next point is identifies cost of an activity to the entire value chain by taking all linkage into account. Identifies cost of an activity to the entire value chain by taking all linkage into account. Whatever be the activities, in its costs should be ascertained by whatever its linkage to the other activities. And what respect this activity is important, it should be also keep in mind. And on the basis of two, it should be needful to identify the cost of an activity to the entire value chain. In the course of value addition of the product, how a certain activity is important and what is best cost, suitable cost, required cost. To provide that activities go on smoothly and well. To accomplish the value chain, for the attainment of a national goal, for the accomplishment of business strategy, accounting, so here the one thing which is very important, identify its linkage to other activities and what is its impact on other activities. यह कसौटी है,
जिस पर कि उस एक्टिविटी के महत्व को समझा जा सकता है। जैसे किसी प्रोडक्शन यूनिट्स में असेंबलिंग का काम, बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए जा रहे हैं और उसको असेंबल किया जाना है। अब ये जो एक्टिविटी है बहुत महत्वपूर्ण है। असेंबलिंग जो है और टेस्टिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा उसके कंपोनेंट अच्छे होने के बावजूद भी अगर असेंबलिंग सही नहीं है, उसका जो है असेंबलिंग के बाद जो टेस्ट है अगर किया जा रहा है वो सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट हो सकता है कि जा कर बाजार में फेल हो जाए या शिकायतें आने लगें, बदनामी होने लगेगी और प्रोडक्ट का मार्केट जो है खराब हो जाएगा। तो अब ये असेंबलिंग है, इस असेंबलिंग को देखा जाना चाहिए कि कौन कौन से कामों से ये जो है संबद्ध है, कौन कौन से काम हैं उससे ये जुड़ा हुआ है। जैसे कि जो है वहाँ ढुलाई का काम जो हो रहा है, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको जो लाए जा रहे हैं असेंबलिंग के दरमियान, वो बेहतर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बीच बीच में जो है गैप हो जा रहा है, सही समय पर जो है जो कंपोनेंट्स है वो नहीं आ पा रहे हैं। 10 तरह के कंपोनेंट से कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाना है, उसमें 1-2 कंपोनेंट्स की ढुलाई जो है वो सही नहीं है। तो उससे पूरा का पूरा जो है असेंबलिंग का काम प्रभावित होगा, सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जितनी देर में होना चाहिए असेंबलिंग वो नहीं हो पाएगा। फिर असेंबलिंग के बाद जो है उसका जो स्टोरेज है उसमें किसी तरह की कठिनाई है, तो असेंबल किए हुए जो प्रोडक्ट हैं वो रख रखाव के दिक्कत के कारण उसके क्वालिटी में डिटोरिएशन आ जा सकते हैं। तो हमारा मकसद तो है वैल्यू एडिशंस, वैल्यू चेन की हम बात कर रहे हैं, और किसी एक एक्टिविटी के कारण जो है वो उसके वैल्यू में जो है कमियां आती जा रही हैं। तो मैं कह रहा था कि ये जो लिंकेज है किसी एक्टिविटी का दूसरे एक्टिविटी के साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने कहा कि कहीं जो असेंबलिंग का काम हो रहा है उसमें बहुत सारे एक्टिविटी जो हैं वो लिंक हैं, ढुलाई का, भंडारण का, फिर अन्य तरह के भी उसमें असिस्टेंस हो सकते हैं जो असेंबलिंग के काम कर रहे हैं।
उनको जो सपोर्ट सर्विसेज है, उनके काम करने का जो टूल्स है वो किस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है, पावर बैकअप है। तो ये सारे जो लिंकेज जो काम के हैं किसी एक्टिविटी से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब असेंबलिंग का काम जो है वो सही ढंग से हो, उसके लिए उससे लिंक्ड जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सही ढंग से काम करनी चाहिए, अन्यथा असेंबलिंग का काम सही नहीं हो पाएगा। और आमतौर पर देखा यह जाता है कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो जब सही नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से संबंधित जो लोग होते हैं सीधा उनको जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज में जो है अन्य जो कामों का जो संबंध है, लिंकेज है, वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये आमतौर पर जो है नजरअंदाज कर दिया जाता है। भाई तुम्हारा ये टारगेट था, तुमने नहीं पूरा किया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इसके लिए तुम जिम्मेवार हो, मैं तो दंडात्मक कार्रवाई तुम पर करूंगा, तुम्हारा वेतन रोकूंगा, वेतन में कटौती करूंगा, या कभी कभी जो है हायर फायर वाली भी जो है नीति अपना ली जाती है। जबकि जो कमियां हैं उसके लिए उस एक्टिविटी से जुड़े हुए सीधे लोग जो है कभी कभी जिम्मेवार नहीं होते हैं। अन्य कारणों से उस एक्टिविटीज में कमियां आ जाती है, उसकी गुणवत्ता के उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। इसको कभी एनालाइज किया नहीं जाता है आमतौर पर। यह नहीं होना चाहिए। In the course of value chain, the strategic management, accounting, justify the things regarding any activity, taking considerations of its linkage to other activities, in the course of value chain, product differentiations, which leads to cost leadership. And there are some points under this point should be noted that in the identifications, considerations
of any activities a sense of justice should be needed to uprise such activities. आंख मूंद करके कोई फैसले जो है नहीं लिए जाएं, सारी बातों को देखी जाए, सारी बातों को समझी जाए। और बातों को समझने के लिए कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, हर जगह से बातें आनी चाहिए, उसका सही जो है आकलन किया जाना चाहिए। नहीं कि जो है टेबल टॉक जो है सो होनी चाहिए, पेपर टॉक होनी चाहिए। टेबल पर बैठ करके पेपर को देख के फैसले लेने वाले काम जो हैं वो वैल्यू चेन में गड़बड़ी लाने वाले होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, focus is on cost reduction, significant role for first cost driver analysis, scale economics, benchmarking, target costing, Kaizen. These 5 points should be keep in mind in the process of cost reductions, which is the prime objective of cost leadership. First, the cost driver analysis. What is meant by cost driver? Any activities, any facts which is responsible for the increment or decrease in cost is so-called cost driver. जिसके कारण जो है कीमतें प्रभावित होती हैं, उनको समझना, उनको जानना, गहराई से उनका अध्ययन किया जाना, जैसे कि जो प्रशिक्षित मानव बल होते हैं उनका जो है रेम्यूनरेशन, वेतन जो है वो ज़्यादा होता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये प्रशिक्षित जो मानव बल हैं उसमें एक्सपीरियंस भी जोड़ दिया जा सकता है। अनुभवी और प्रशिक्षित जिन पर की वेतन मद में ज़्यादा व्यय करना पड़ता है
तो ये तो कॉस्ट लीडरशिप के ख्याल से जो है एक उल्टी बात है कि ऐसे लोगों पर वेतन मद में ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन उसका एक दूरगामी फायदा जो है ये होता है कि ऐसे लोगों के कारण कार्य में गुणवत्ता आ जाती है और अंतोगत्वा वो वैल्यू चेन में जो है वो जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसमें जो है अंतोगत्वा कमी आ जाती है। एक तरफ ऐसे मानव बल को हायर करने में खर्च ज़्यादा है, उनको ज़्यादा वेतन देने पड़ सकते हैं जो कॉस्ट लीडरशिप के खिलाफ है। लेकिन ऐसे लोगों के सहयोग से जो है, ऐसे लोग को एम्प्लॉयमेंट देने से जो है वो अंतोगत्वा जो है प्रोडक्शन में सुधार आती है, काम की गुणवत्ता बढ़ती है और अंतोगत्वा प्रोडक्ट का जो कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो हम वही उपाय करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये जो अनुभवी और कुशल जो कार्य बल है इस पर ज़्यादा हमें जो है सो वेतन मद में व्यय करना पड़ेगा। उसका दूरगामी प्रभाव समझा जाना चाहिए कि इनको जो है इम्प्लाइड कर लेने से हमारा जो है ओवरऑल जो है प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखा जाना चाहिए। बहुत कंजर्वेटिव होकर के, बहुत संकीर्ण होकर के नहीं सोचा जाना चाहिए। दूसरा है स्केल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी जो है वो तो एसेंस है कॉस्ट लीडरशिप का। विदाउट इकोनॉमी it is irrelevant the cost leadership। हर एक्टिविटी को इकोनोमाइज करना, देखिए ये कॉस्ट रिडक्शंस और इकोनॉमी ये दोनों दो टर्म हैं जिसमें कि इकोनॉमी जो है वो एक पॉजिटिव टर्म्स है। किसी चीज़ को इकोनोमाइज करना ये पॉजिटिव टर्म्स है। किफ़ायत ये एक पॉजिटिव टर्म्स है। कॉस्ट रिडक्शंस ये निगेटिव भी हो सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन से हो सकता है कि कार्य गुणवत्ता में कमी भी आ जा सकती है। तो कॉस्ट लीडरशिप के मुद्दे पर ये हम आंख मूंद कर
कॉस्ट को, किसी भी एक्टिविटी के कॉस्ट को रिड्यूस करने के बदले उसको इकोनोमाइज करेंगे, किफायत बरतेंगे। फिजूल खर्ची को जो है हम रोकेंगे। तो कॉस्ट लीडरशिप में हम किसी भी एक्टिविटीज को जो है इकोनोमाइज करेंगे, उसमें फिजूल खर्ची जो है उसको बंद करेंगे। फिर तीसरा जो बिंदु है वो है बेंचमार्किंग। कॉस्ट लीडरशिप में तुलनात्मक अध्ययन जो है वो तो होता ही है, हम दूसरे से अपनी तुलना करते ही हैं। और उसी के अनुसार हम भी जो है अपने लागत मूल्य में कमी लाने की कोशिश करते हैं। पूर्व में ही बताया जा चुका है कि बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि अपने स्थान को समझना कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट के मुद्दे पर, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अन्य की तुलना में कहाँ पर है, 1 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पर कौन है, हम कहाँ हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन कॉस्ट लीडरशिप में होता ही है। फिर उसके बाद है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग जो हमारा एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको जो है पहले हमको जो है तय कर देने पड़ते हैं। बेंचमार्किंग से यही फायदा होता है। ऊपर का जो बिंदु है बेंचमार्किंग, इसका फायदा यही होता है कि हम बाजार में अपने स्थान को समझते हैं और उसी के अनुसार जो है हम अपने प्रोडक्ट में जो भी तब्दीली लानी है उसके कॉस्ट वगैरह में, उसका एक लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, उद्देश्य भी निर्धारित कर लेते हैं। नाउ द लास्ट वन इज काइजन। What he means by Kaizen? This is Japanese term. Kaizen. It may be possible this is new term for you. In nutshell, in precisely, Kaizen means continuous improvement. This is endless process. This assumption is that nothing is perfect. There is always a scope of improvement. So, do improvise
your activities in a business organizations, whatever is there in the course of value chain to attain cost leadership by eradicating overheads, overexpense, and end up in productive activities. So now on focusing cost reductions for the particular activities. These 5 things should be keep in mind: cost driver analysis, scale economics, benchmarking, target costing, and Kaizen. Now the last point. Make decision based on who has the greater cost advantage, considering cost throughout the value chain. प्राथमिकताएं तो हर जगह रहती ही हैं, रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते ही हैं। अब जो बहुत महत्व के जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज, उसको तो प्राथमिकता में रखनी ही पड़ती है। इसलिए कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। जो प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजें हैं, वैल्यू चेन में, उन पर तो व्यय करने ही होते हैं। और वो व्यय जो है कभी कभी जो है दूसरे जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र नहीं है वहां से काट कर भी व्यय करने होते हैं। इसलिए कि जो रिसोर्सेज है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का वो सीमित है। तो ये तो लाजमी है और उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसके लिए भी निर्णय लिए जाते हैं कि कौन प्राथमिकता के जो है प्राथमिकता की जो है गतिविधियां हैं, और प्राथमिक गतिविधियों को चिन्हित करने के बाद भी निर्णय लिए जाते हैं। मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन हु हैज द ग्रेटर कॉस्ट एडवांटेज, considering cost throughout the value chain.
एक निर्णय तो जो है ऐसे गतिविधियों को चिन्हित करने के लिए लिए जाते हैं और फिर चिन्हित करने के बाद भी निर्णय लिए जाते हैं कि इनके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। चूंकि ये जो प्राथमिक जो जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक रूप से जो है वैल्यू चेन में जो है एक बेहतर प्रोडक्ट के लिए जिम्मेवार है, एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट के लिए जिम्मेवार हैं, तो उनको तो महत्व देना ही होता है। कॉस्ट लीडरशिप में दूसरे जगह के जो है जो फंड होते हैं उसमें कर्टेलमेंट भी लाए जाते हैं, ये प्राथमिक जो गतिविधियां हैं इनको और बेहतर बनाने के लिए। तो ये कक्षा यहीं समाप्त होती है, आगे की बातें आगे की कक्षा में।